Yes, so now we will summarize our chapter 14, that is what statistics. तो first topic is mean, है ना? We will check for mean, median and mode. Our first topic is mean. Mean होता क्या है? ठीक है? तो it is nothing but the average of class. ठीक है? When we have ungrouped data, suppose 4, 7, 11, 15, 16, 24, 32, इस तरीके से. Then what we have to do? We just have to add every number and divided by number of number 1 2 3 4 5 6 7, so divided by 7. This is the mean. ठीक है, but this is for ungrouped data. Okay, this is for ungrouped data. When grouped data is given, grouped data means you have class intervals. आपके पास क्या होगा? क्लास इंटरवल होगा. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज यू हैव 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. Suppose this is the class interval, है ना? You have the class interval or okay. Now we have the class interval. Okay, delete this. Frequencies are given. We have frequencies. It is denoted by Fi. Okay, it is denoted by Fi. So we have the frequencies 12, 4, 8, 6 and 10. Okay, so first of all what we have to find first is that we have to find the sum of frequencies, that is denoted by summation of Fi, है ना? तो their sum is what? Their sum is 50. ठीक है, now to find the mean we have three methods. हमारे पास तीन methods हैं. देखो पहला फर्स्ट कौन सा है? डायरेक्ट मेथड, in which we have to find xi. xi is what? The class mark. ठीक है, xi is what? Class mark. और class mark होता क्या है? देखो class mark is the average of the class. Average means देखो 10 और 20, तो 10 plus 20 is what? 30. 30 का divided by 2 because number of number is 2, है ना? तो 30 divided by 2 means 50. ठीक है, in the same sense 30 plus 20 50, 50 by 2 तो 25. Now look, we can write it by the short method. वो क्या होगा? जितना डिफरेंस होगा ना, देखो क्लास इंटरवल इज इन रेगुलर फॉर्म. रेगुलर फॉर्म का मतलब देखो ये 20 है, ये भी 20 है ना? 30 तक एंड हुआ, 30 से ही शुरू हुआ. दिस इज कॉल्ड द रेगुलर इंटरवल. ठीक है, फिर हमने देखा कि जब 10 का डिफरेंस है तो वी कैन ऐड 10 टू एवरी वन, है ना? दिस विल बी 45 एंड दिस विल बी 55. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई fi into xi. ठीक है, तो देयर मल्टीप्लिकेशन 12 into 15 180, 25 into 4 100, 100, 35 into 8, 35 2s are 70, 7 4s are 28, तो 280, 45 2s are 90 और 93s are 270 and 55 into 10 550. ठीक है, then we have to find the sum of fi into xi. ठीक है, sum of fi into xi, इनका sum तो देखो 0 8 8 16, 7 23 5 28, 2 3 4 5 6 7 8 और 5 13, तो 1380. Now formula to find the mean is x bar is equals to summation of fi xi upon summation of fi. ठीक है, तो क्या होगा? 1380 divided by 50. ठीक है, एंड दिस गिव अस द वैल्यू. देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना? सो वी हैव 5 2s are 10, 38 5 7s are 35.6, 27.6. दिस इज द एवरेज, है ना? एवरेज और मीन. दिस इज बाय डायरेक्ट मेथड, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है, नाउ देखो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो गया.
है ना, ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो वी कैन चूज द डिफरेंट मेथड टू सॉल्व और टू फाइंड द मीन। व्हाट इज दैट? दैट मेथड इज कॉल्ड assumed mean method. That method is called assumed mean method. Assumed mean method. ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, देखो ये पार्ट तो करना नहीं है फिर हम fi into xi, क्योंकि ये तो बड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल एज्यूम वन मीन। तो हम क्या करेंगे, लेट a be the assumed mean। देखो अब हमें लेट क्या करना है कि a होगा क्या हमारा, देखो a विल बी द सेंटर वैल्यू। तो जब हमारे पास ऑड होंगे नंबर, देखो 1 2 3 4 5, तो वी कैन इजीली चूज द सेंटर वन। बट इफ वी हैव इवन नंबर्स देन तो यू कैन टेक बाय योर ओन, आप कोई भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो। आई एम चूजिंग एट 35, क्लास मार्क से ही लेना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू एज्यूम द मीन फ्रॉम क्लास मार्क, है ना। तो दिस विल बी xi कौन सा 35। Now in next step what we have to do, we have to put xi minus a. What we have to do, class mark minus assumed mean. So class mark is 15, assumed mean is 30. If we subtract we get minus 20, है ना। 25 minus 35, this will be minus 10, this is 0, this is 10 and this is 20, है ना। 55 minus 35 20, 45 minus 35 10। तो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमने क्या किया था, डायरेक्ट मेथड में fi into xi डायरेक्ट किया था, है ना। अब हम क्या करेंगे, fi का मल्टीप्लिकेशन xi माइनस a से करेंगे। यहाँ क्या है, fi into xi माइनस a, इससे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, लुक दिस विल बी minus 240, 10 4 minus 40, this is 0 तो 0, 10 6 60 and 200, ठीक है। तो देखो 200 और 240, माइनस 40 बचा, यहाँ से प्लस का 10 20, ये माइनस 10। तो इनका सम क्या होगा, देखो समीशन ऑफ xi, और इसको हम क्या कर सकते हैं, लेट कर लिया कि दिस इज di, है ना। ये ब्लॉक में जो नंबर लिखे हैं ये di है, ये हमने लेट कर लिया एनी नंबर। आप कुछ भी वेरिएबल अपने हिसाब से भी कर सकते हो। आई एम लेटिंग एस डी आई, तो fi di इनका सम इज व्हाट 20, किसका, माइनस का 20, है ना, माइनस का 20 है। तो देखो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला विल बी x बार इज इक्वल्स टू, देखो हमने यहाँ क्या है, एज्यूम्ड मीन को सब्सट्रैक्ट किया है, वी हैव सब्सट्रैक्टेड द एज्यूम्ड मीन। तो फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा इनका, एज्यूम्ड मीन को ऐड, है ना, क्योंकि यहाँ से सब्सट्रैक्ट किया था तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi, है ना। एज्यूम्ड मीन हमने लेट के लिया था, दिस इज 35 प्लस fi di का सम माइनस 20 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दिस इज 50, तो कैंसिल, है ना। अब हमारे पास क्या आया, देखो माइनस 2/5, तो 35 माइनस 2/5 क्या होगा, 0.1 नो 0.4, ठीक है। तो 35 माइनस 0.4 विल गिव अस 34.6 एंड दिस विल बी योर मीन, ठीक है। व्हाट वैल्यू वी हैव 34.6। सो दिस इज द एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। फिर और नेक्स्ट मेथड अगर हम देखें, इसका सम तो ठीक है ना, माइनस 280 है, ये 260 है, तो माइनस 20, यस करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। नाउ थर्ड मेथड इज व्हाट, अगर ये वैल्यूज भी बड़ी आती है ना, यहां से ये वैल्यू भी बड़ी आती है, तो हम क्या करते हैं, देखो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, है ना, आप लोग वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल देखो अप टू हियर वी हैव डन, है ना। अगर ये भी बड़ा लगता है तो हम लेट क्या करेंगे, यहां से xi माइनस ए फाइंड किया, है ना। अब xi माइनस ए की जगह क्या करना है, xi माइनस ए अपॉन h। h क्या होगा, h इज हाइट ऑफ क्लास,
हाइट ऑफ क्लास h। देखो 10 से 20 तक हाइट कितनी है 10, यहाँ भी 10। मैंने बताया है दिस क्लास इंटरवल इज द रेगुलर क्लास इंटरवल, तो हाइट विल बी सेम फॉर एवरीवन। अगर हाइट जिसमें सेम नहीं होगी तो उसको हम सेम बनाएंगे, है ना। तो हाइट ऑफ क्लास h और h इज इक्वल्स टू है क्या 10। तो देखो xi माइनस a ये क्या था -20। तो अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2। कितनी छोटी वैल्यूज आ गई है ना। और इसको हमने नेम कर दिया दिस इज इक्वल्स टू ui। ओके, दिस xi माइनस a अपॉन h इज व्हाट ui। तो अब fi भी है हमारे पास, ui भी है, वी कैन फाइंड fi ui, है ना। एंड fi ui इज व्हाट, fi ui इज 12 into -2 तो -24, 4 ones are 4 तो -4, this is 0। now 6 ones are 6 and 10 twos are 20। ठीक है, तो देयर सम विल बी look fi ui, सम ऑफ fi ui। तो देखो ये 26 है, ये 28 है, तो ये आ गया -2। कितना आ गया -2। देखो माइनस का इसका ऐड कितना होगा -28 और इसका सम कितना होगा 26। तो 26 और 28 -2 बचा, है ना। तो देयर सम इज -2। अब हमने देखा फॉर्मूला क्या बनेगा टू फाइंड द मीन, द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन। ये स्टेप डेविएशन मेथड है ना। ये एज्यूम्ड मीन हो चुका है। दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड, deviation method। now in this step deviation method what we have to do, फॉर्मूला देखो पहले हमने क्या किया था, assumed mean को subtract, then we will add the assumed mean here in the formula, तो ऐड कर दिया। now the same formula that is summation of fi ui upon summation of fi, but देखो we have divided this value by h, तो फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा हमें, multiply by h, है ना। नाउ द फॉर्मूला विल बी करेक्ट। तो देखो a इज व्हाट, a इज 35 प्लस नाउ fi ui, सम ऑफ fi ui इज -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 50 इनटू हाइट इज 10। देखो 10 से 10 कैंसिल, -5/2, तो ये कितना आ गया देखो 35 प्लस क्यों माइनस ही होगा, -2/5 इज व्हाट 0.4, तो आंसर क्या होगा हमारा 34.6 एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो तीनों मेथड से आंसर वही आया हमारा 34.6 इटसेल्फ। ठीक है, तो यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज इनफ फॉर मीन, है ना। इसी टाइप के आपको एक रेगुलर इंटरवल दिया गया होगा, ठीक है। और एक जो स्टेप होता है अगर रेगुलर इंटरवल नहीं है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, तो ये तो हो गया मीन फाइंड करने का। नाउ वी विल टॉक अबाउट मीन के अब बाद में मोड। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मोड। व्हाट इज मोड? तो देखो फॉर अनग्रुप्ड डेटा दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास, 9th में भी था। तो 9th में यू हैव लर्न दैट द हाईएस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी इज द मोड, है ना। द हाईएस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी इज द मोड। जो भी जैसे देखो 2 3 4 3 1 3 7 3 3 3 4 7 9 1 12 कुछ भी। देखो इसमें 3 क्या है, मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। देखो दिस इज ऑल्सो 3, ये 3 है ना। तो हमारा मोड क्या होगा 3। तो बाय दिस सेम मेथड वी विल फाइंड इट फॉर ग्रुप्ड डेटा, है ना। अब हम ग्रुप डेटा के लिए देखो कैसे होगा। सपोज वन एग्जांपल इज देयर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. Okay, this is the these are the class intervals. Now we have frequencies. अब इसके बाद हमारे पास frequencies भी होगी, है ना। So what are the frequencies? Suppose this is 2, this is 4, this is 6, ये this is 15, this is 21 and this is 14 and this is 2.
ठीक है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने देखा था फॉर अनग्रुप डेटा द मैक्सिमम ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी इज द मोड। तो हियर आल्सो द मैक्सिमम ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी इज 21, so we will take the entire class, we will take the entire class, ठीक है। तो 50 to 60 is called मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मोड निकालना है तो मॉडल क्लास। और एक चीज है, वन पॉइंट इज देयर, और एक फैक्ट मान लो कि जो आंसर होगा ना, आंसर विल ऑलवेज लाई, ऑलवेज लाई इन मॉडल क्लास। जो भी आंसर आएगा वो 50 से 60 के बीच में ही होगा। देखो कैसे होगा, वी हैव द फॉर्मूला टू फाइंड द मोड, और हमारे पास मोड को फाइंड करने का फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअली, देखो मोड इज इक्वल्स टू एल, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। अब इतना सब कुछ आ गया सर, याद कैसे रहेगा, देखो एक्चुअली में क्या है, f1 होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेट मी राइट इट हियर, हाँ यहाँ दिख रहा है, देखो f1 इज व्हाट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इट इज व्हाट 21, है ना। अब देखो f0, देखो 1 के पहले 0 आता है ना, तो वी विल टेक द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, क्या लेंगे, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, क्योंकि 1 के पहले 0 आता है, तो 21 के पहले क्या है 15, दिस इज f0। f2, 2 comes after 1, तो आफ्टर फ्रीक्वेंसी मींस द सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, तो इट इज 40, ठीक है। हाइट इज व्हाट, h इज 50 to 60, तो 50 to 60 में डिफरेंस कितने का है, 10 का, है ना, तो हाइट इज 10। नाउ वी हैव एवरी वैल्यूज, तो वी विल पुट दीस वैल्यूज इन फॉर्मूला, लोअर लिमिट इज व्हाट 50 प्लस f1 इज व्हाट 21 माइनस f0 preceding frequency, this is 15 divided by 2 into 21, we can directly write 42 minus f0 is what 15 minus, or f2 is 14 sorry, into 10, ठीक है। तो this will be 50 plus 21 minus 15 6 आएगा, 42 minus 29, तो this will be 30 into 10। तो देखो डोंट टेक द एलसीएम हियर, यहाँ कभी भी एलसीएम नहीं लिया करें, आपका सॉल्यूशन विल बी लेंथी, है ना, योर सॉल्यूशन विल बी लेंथी। व्हाट वी कैन डू हियर, देखो ये 60 है ना, ये बताया दिस इज 60, तो 4.34 सा 52 कैरी 8, है ना, आप ये कर सकते हो 60 डिवाइडेड बाय 30, तो 34 सा 52, 8, 36 सा 78, 2, और ये पॉइंट है यहाँ पे, है ना, एक और वैल्यू निकाल दो तो 0 आएगा, तो 31 सा 30, 4.61, तो आंसर विल बी 54.61, है ना। नाउ यू कैन नोट इट डाउन, एंड दिस इज ऑल फॉर मी, सॉरी फॉर मोड, ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। देखो आंसर 54, दिस लाइक दिस मॉडल क्लास ओनली, ठीक है। Now we will talk about median. What is median? तो देखो median होता क्या है? Basically median is the middle value. We can say that median is the middle value. तो if n is even, then we have 2 values. If n is odd, then we have 1 value. है ना? देखो जैसे 1, 4, 7, 11, 15, 19 और 21 ये दिया गया, तो इसकी median क्या होगा? देखो we left 3, 11, फिर उसके बाद भी 3, तो 11 विल बी द मीडियन, ये हमारा मीडियन। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर्स हो जैसे 1, 4, 7, 11, 15 और 19, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द n by 2th टर्म,
plus n by 2 plus 1th term and their average, तो divided by 2. तो देखो n by 2th term is third term, n by 2 plus 1 this is fourth term, तो 11 plus 7 plus 11 बात एक ही है, divided by 2 तो 18 divided by 2 तो 9 will be the median. But this is just for an ungrouped data that you have learned in your previous class. तो आज की क्लास में क्या होगा, in 10th you have to learn how to find median for a grouped data. तो देखो मीडियन हम फाइंड कैसे करते हैं. Suppose we have class intervals 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90. देखो हर बार मैं इसलिए ले रहा हूँ ये क्लास इंटरवल ताकि समझ में जल्दी आए, है ना. इक्वल डिफरेंस है और रेगुलर है, ठीक है. फ्रीक्वेंसीज कोई भी ले लो, 4, 5, 11, 17, 22, 34, 2 और 1, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. स्टेप फर्स्ट क्या है, यू हैव टू राइट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब सर ये नया टर्म कहां से आ गया, देखो CF होता क्या है, CF इज व्हाट, द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो देखो हमने फर्स्ट टर्म में तो 4 खुद से प्लस थोड़ी होगा, तो 4 का 4 ही रहा, है ना. इन नेक्स्ट टर्म वी हैव 4 and 5, तो 4 plus 5 is 9, ठीक है. देन 9 plus 11 this is 20, then 20 plus 17 this is 37, 37 plus 22 this will be 59, 59 plus 34 this will be 93, है ना. 93 plus 2 95, 95 plus 1 96, ठीक है. तो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई. तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड. नाउ इन सेकंड स्टेप वी हैव टू फाइंड n by 2. तो नाउ व्हाट इज n, देखो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज n, ओके. लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज n. तो वी हैव n इज इक्वल्स टू 96, तो n by 2 इज व्हाट, 48. n by 2 is 48. Now we have to check, थर्ड स्टेप में क्या होगा, check the nearest greater cumulative frequency then n by 2. n by 2 से जस्ट बड़ी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, 48 है तो 59, ये वाली, ठीक है. तो दिस विल बी अवर मीडियन क्लास. ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास. तो हमारी मीडियन क्लास क्या है, देखो मीडियन क्लास दिस विल बी 50 to 60. और हमें ये भी पता है हमारा आंसर जो है ना, आंसर विल ऑलवेज लाई बिटवीन मीडियन क्लास या इन मीडियन क्लास, इसी के अंदर में रहेगा. अगर एक्सीडिंग हो रहा है तो यू हैव टू चेक योर सॉल्यूशन, है ना, वहां पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है. अब देखा हमने फॉर्मूला टू फाइंड मीडियन इज लोअर लिमिट दैट इज n प्लस ब्रैकेट n by 2 जो फाइंड किया था हमने माइनस CF, ये इंपॉर्टेंट है ना. CF कौन सी होगी, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट. तो h तो पता चल गया. जो भी मीडियन क्लास है, याद रखना, जो भी मीडियन क्लास है वी हैव टू टेक द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियन क्लास, है ना. अब चाहे रेगुलर क्लास इंटरवल हो, वेदर इट इज रेगुलर क्लास इंटरवल और इररेगुलर क्लास इंटरवल, यू हैव टू टेक द हाइट ऑफ द मीडियन क्लास ओनली, है ना. और हाउ टू फाइंड द मीडियन क्लास, दिस प्रोसीजर आई हैव ऑलरेडी 10, ठीक है. तो देखो लोअर लिमिट इज व्हाट, लोअर लिमिट इज 50 प्लस n by 2, n by 2 is 48. Sorry. Now look, in place of CF हमें ये वाली CF नहीं लेनी, हमें लेना है इसके प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. कौन सी लेनी है, क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाई आई हैव मार्क्ड देयर, है ना, मार्क अ स्टार देयर. तो प्रीसीडिंग कौन सी है, 37 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास.
दिस इज 22 एंड हाइट इज 10, इसकी हाइट, ओके। तो 50 प्लस 48 माइनस 37, 11 हो गया, डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10, तो 11 2 ज़ा 22, 2 5 ज़ा 10, तो 50 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 55। दिस विल बी अवर मीडियन। ये हमारा क्या है, मीडियन, ओके। So one more formula is there. Suppose इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, this is basically 1 marker question कि if median is equals to 37, mean is equals to 24, you have to find the mode. तो we have a empirical relationship between mean, median and mode. तीनों के बीच में क्या होती है, देखो 3 median is equals to mode plus 2 mean. Mode plus 2 mean. Now we can rearrange them, है ना, no problem. कि 3 median minus 2 mean is equals to mode. तो by this relationship we can directly find the value of mode. Mode या mode दिया जाता तो mean, if mean is given then we can find the median. तो this is the empirical relationship you have to keep in your mind. ठीक है, 3 to 1, this is the best method. 3 median, 2 mean, 1 mode. तो median, mean, mode, okay.